So the big story of the hour is the Jhansi fire incident that has taken place that has shocked the nation. At least 10 children have lost their lives in a fire that broke out in the children's ward of a medical college in Uttar Pradesh's Jhansi district. That's what the statement the officials have claimed, that 16 others have sustained injuries and are currently in a critical condition. As per hospital officials, there were around 54 infants admitted in the NICU ward. Jhansi District Magistrate Avinash Kumar has informed and stated that the fire started at around 10:45 p.m. in the NICU of the Maharani Lakshmi Bai Medical College. As per officials, prima facie cause of the fire is said to be a short circuit. Uttar Pradesh government has announced that a multi-level investigation will be carried out into the fire at the medical college. Prime Minister Narendra Modi condoled the incident and said that the incident is completely heart-wrenching and offered deepest condolences to the children who lost their lives. We have several ground reports from Jhansi on the same. Let us cut across. We are at Jhansi Medical College SNCU ward where this fire incident took place, in which 10 of the newly born babies lost their life. This is police has done his barricading. This is the crime scene in which the primarily things which are coming out that the incident took place because of the short circuit in the oxygen concealer. And when these cylinders were used to extinguish the fire, to stop the fire, they get to know that these cylinders are not working, because you can see these cylinders whose fire next due date are 24/7/2021. This was one of the biggest lapse. Because of that, this incident has gone this much. The fire has started and gone to the every place of the NSU. You can see the visuals, and also for these sensitive places, the fire safety and the fire exit is very important. But these AC ducts were used to take out the babies and the people who were stuck inside at the time of fire. And you can see some of the oxygen cylinders also worked because they were not expired. This you can see 9/6/2025. Some of the cylinders worked, some of the cylinders did not work, and this was the incident when the fire took place. People were there, parents were there, they wanted their children to come out. They were using every measures to stop the fire, but the cylinders were not working because of the expiry of these cylinders. These cylinders got expired, and this lapse of fire safety measures caused this fire this much, so that 10 of the families lost their newly born babies. Now the primary investigation from the medical college team of doctors are doing. CM Yogi Adityanath has called and ordered 12 hours. Within 12 hours he need the primary report behind the whole incident, and he has announced 5 lakh rupees for the deceased, the compensation amount, and 50,000 for those children who were inside and are under treatment. For cameraman, for News X with cameraman Deepak, Abhishek Singh from Jhansi. We are at the medical college where the fire incident took place, and 10 of the newly born babies lost their life. We are with some of the families which are victims, and they are saying the rest of the babies are missing. Their babies are also missing. They are handed up with some other of the babies, and they want that DNA test should be taken so that every parent should get his own baby. क्या पता चला आपको कि आपका बच्चा नहीं मिल पाया, आपके पास किसी और का बच्चा है? बिल्कुल, मेरे पास किसी और का बच्चा है, लेकिन मैं वो बच्चा तभी दूंगा जब सभी बच्चों के डीएनए टेस्ट किए जाएंगे। इस प्रशासन से और डॉक्टर्स का क्या था, आप बच्चे भगदड़ हुई, बच्चे बाहर निकले यहाँ से, जब यहाँ पता चला कि अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, तो जो भी जहां जैसे घुस सका उसने बच्चा उठाया, ले गया, और जहां तक जैसे टैग निकाल सके टैग निकाल दिया। जिसके बॉडी पे टैग था वो टैग निकल गया, और अपने नाम का टैग लगाया इमरजेंसी से, और बाहर लेके एडमिट करा दिया। अब उससे कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा ही नहीं का है? जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा।
अब जैसे मेरे पास है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा नहीं है, वो किसी और का बच्चा किसी और का है, लेकिन भाई मेरे जगह हो सकता है मेरा बच्चा कोई और लिए, वो भी अपनी जिंदगी से खेल रहा, वो जो मेरे पास है वो भी अपनी जिंदगी से खेल रहा। उसको बचाना पहले समझा मैंने, इसलिए मैंने उसे एडमिट करा दिया। अब मैं प्रशासन से और माननीय श्री योगी जी से विनती करता हूं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे थे सभी को डीएनए टेस्ट करा के, और सभी को जिन बच्चों के माता पिता यहाँ पे हैं और जो चले गए हैं और जो बच्चे यहाँ पे एडमिट थे उनको यथास्थान दिया जाए, डीएनए टेस्ट करा के ही दिया जाए, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन किसका बच्चा है। मैं भी मानने लगूंगा ये मेरा ही बच्चा है, तो कौन समझेगा कि आपका है, बताइए। He is demanding a DNA test of all the children who are here, not only the deceased ones, but who are alive, who are under the hospitals or they taking the treatment they wanted. Every child should get a DNA test so that he should get his own parent. Cameraman Deepak, Abhishek Singh, Jhansi from Jhansi for News X. एसएसपी झांसी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, आप क्राइम सीन पर थी, क्या कुछ देखा? हाँ, मैंने बताया कि रात को भी हम लोगों ने 2 से 3 बार क्राइम सीन देखा है। महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसलिए हम लोग क्राइम सीन का बार बार विजिट करते हैं और देखते हैं कि शायद अगर भूल से चूक से कोई चीज़ें छूट गई हों तो उसको जो है हम लोग फिर से देख सकें और उसको अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर सकें। मैम, डीएनए की मांग कर रहे हैं, परिजन नाराज भी हैं, कह रहे हैं कई लोगों के बच्चे किसी और के पास हैं, बच्चे नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं किसका बच्चा। नहीं, सबका डीएनए परीक्षण कराया जा रहा है, जो आइडेंटिफाइड है उनका भी डीएनए परीक्षण हो रहा है। वो आए, हम लोग डीएनए परीक्षण करने के लिए तैयार हैं और डीएनए परीक्षण कराएंगे। मैम, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में कुछ आया है? किस तरह की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट? जो आप लोग तैयार कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं, अभी हम लोग की तरफ से, मेरे और डीएम साहब की तरफ से एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट गई है जो सिर्फ घटना से संबंधित है। बाकी उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट जो है कमिश्नर साहब तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ एसएसपी झांसी थी जो बता रही थी कि किस तरह से ये जो पूरी जांच है ये चल रही है, क्या कुछ अंदर क्राइम सीन पर देखा गया उसके बारे में उन्होंने बताया, और ये भी बताया कि जो डीएनए है वो सभी का कराया जाएगा, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जिससे निष्पक्षता और जो भी बच्चे हैं उनका पोस्टमार्टम भी जल्द से जल्द कराया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह। We are in Jhansi Medical College where fire incident took place in NSU and 10 of the newly born babies deceased because of that. We have some eyewitnesses with us who were there at the time when this whole incident took place. What exactly has happened, we'll just get to know. We will learn from them what exactly has happened. क्या हुआ था भाई? हाँ साहब, ये कि उनने दूध पीने के लिए हमें बुलाया कि बच्चों को दूध पिलाना है, तो हम अंदर गए बाट के अंदर, तो वहाँ से एक नर्स दौड़ती हुई आई, बोले अंकल बचाओ, बच्चों में आग लग चुकी है। तो हमने जब देखा कि उसमें स्वयं में आग लगी थी एक पैर में, तो वो नर्स बाहर निकल आई, 2 नर्सें और थी, उनने भी बच्चों को बचाया और करीब 20 बच्चों को हमने बचाया। जब आगे के गेट पे आग लग चुकी थी, फिर हमने पीछे की गैलरी से ये जाली तोड़वा के और यहाँ से 6 बच्चे और निकाले थे। आप लोग बता रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे थे? हाँ, उनने यूज किया लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। पिन निकाली, उसको दबाया, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। एक्सपायर्ड थे सर? एक्सपायर थे। और क्या हुआ, आप लोगों ने शोर मचाया? यहाँ शोर मचाया हमने, जब हम अंदर थे तो हमने शोर मचाया कि बच्चों को ले लो, और इसमें आग लग चुकी है। तो जब जनता अंदर पहुंची, जो गार्जियंस थे, तो हमने अंदर से बाहर बच्चों को दिए, फिर उन लोगों ने पकड़े, पर जिसका जैसा हो ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ कौन किसी का ले गया, कोई किसी का ले गया, ये हुआ ये हुआ साहब। उसमें ये तो है नहीं पता कि ये आपका है कि ये किसका है। हम तो वहां से लेके दे रहे थे ऐसे कि भाई बाहर कर दो, बच्चे तो बच जाएं कम से कम। उस समय जो जिसके बच्चे हाथ में आए वो ले गए उनको इलाज? हाँ, वो ले गए। अब बच्चे किसके हैं, कैसे हैं, ये जानकारी नहीं है। और जितने बच्चे इस मेडिकल में आए, इसमें भर्ती कराए थे इमरजेंसी में, उन बच्चों की भी साहब जानकारी नहीं है कि ये बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि 12 घंटे में दूध पिलाना पड़ता था, 2-2 घंटे में। तो उन बच्चों को दूध कौन पिला रहा है, उनके माँ बाप से नहीं मिल रहे हैं, ना कोई अधिकारी सामने आ रहा है। ये संदिग्ध अवस्था है सब। आपका पोता आपको मिला सर? आपने बाहर इलाज? जी। You can see he is one of the eyewitness who was there at the time when this fire incident took place. He was telling us how the fire extinguisher cylinders were not working when they took out the pin and they were trying to use those cylinders to put down the fire, but they were not working.
and many of the newly born babies, they were just trying to save their life, and whosoever was there was trying to save their life, and because of this many of the babies were with some other peoples also. With cameraman Deepak, Abhishek Singh from Jhansi for. We are at Jhansi Rani Lakshmi Bai Medical College where this fire incident took place, and we are with one of the lucky baby boy who just came out from this fire with safety and is in hands of his grandmother. We will learn from her what exactly has happened, how the incident took place and how she was able to get his own grandson. क्या हुआ था बताइए इस वक्त? जिस दिन जब आग लगी थी, जब हमने ऐलान करा है कि दूध पिला जाओ, आपने चिल्लाया? हाँ हाँ हमने चिल्लाया कि आग लग गया है जी, बच्ची का काढ़ो बाहर काढ़ो, तो उस टाइम कुछ नहीं दिखा रही थे आग के पीछे के आग लगी थी, हम और भाग रहे थे, और कुछ लोग खिड़की पटाख में बच्चे बाहर फेंक रहे थे कि दे रहे थे कि लोग पनी पनी बच्चे सिलेंडर आग बुझाने के लिए हाँ कर रहे थे लोग? हाँ, फिर मशीनें आगे बुझाने के लिए, तो जब आग बुझी फिर कुछ बच्चे कुछ काढ़े, फिर अब कछु पेल काट दिया था, कछु खिड़की में पटाए, कछु माँ होकर काट दे, कछु गेट न हो काट दिया। कोई कहीं से भी निकाल रहा था? हाँ सब जो टेटे दरवाजे हाँ पटा रहे थे, वो काढ़ रहे थे, वो सबकी माँ को दे रहे थे, पने पने बच्चे ले जाओ जिसके हो, चाहे छीन रहे हो चाहे नहीं छीन रहे हो। हाँ तो कोई की तो कैसे पहचाना? हमने पने बच्चा हम सूटर पहनाए थे, वो पर्ची लगी थी, हाँ वो पर्ची है। हाँ हाँ इस सूटर से हमारा बच्चा लाल सूटर पहने, इस हाँ पहचान लिया। उन्होंने कही कि तुम्हारा बच्चा कैसा, हमने की सूटर पहने और नाम डरा है, हमने कही सो हमने पहचान लिया। लिखा हुआ है अभी भी बच्चे हाँ के ऊपर? हाँ हाँ स्वेटर से पहचान? हाँ पहचान लिया हमने। तमाम लोग हैं जो अपने बच्चों को अभी तक पहचान नहीं पाए, मिल नहीं पाए। हाँ मिल नहीं पाए उनके बच्चे, हमने पनी बच्चा हाँ सूटर से नाम से पहचान लिया। वे बोले कल क्यों रो रहे, कल उस तरफ है बच्चा, जाओ उस तरफ चीनो पने बच्चा के लिए, हमने पना बच्चा चीन लिया। दिखा रहे थे कि अगर आपका बच्चा है तो आप हाँ हाँ कह रहे थे पने पने बच्चा चीन लो जी, बच्चा हमने काट लिया है, तो हमने पने बच्चा हाँ चीन लिया और ले लिया। हाँ उस उनने होते फिर मुझे मिलन केंद्र में हमको कर दिया कि मिलन केंद्र में जाओ, तुम उते रात को गुजार लो। जहाँ लगी है बच्चे को चोट भी लगी? हाँ जहाँ चोट लगी है बच्चा को, हाँ धुएं की वजह से। सुरक्षित है बच्चा? हाँ उससे तो सुरक्षित है, लेकिन हाँ अब अभी नहीं दिखाया हमने डॉक्टर को, जा अब दिखाएंगे। He is one of the lucky baby boy who just came out from the fire, and he is in hands of his grandmother, and she was just telling us the story what exactly has happened, how people were taking out the the babies from every place, from windows, from doors. They were breaking down the doors and windows, and he is one of the luckiest baby who has came out safely from the fire. With cameraman Deepak, Abhishek Singh from Jhansi for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.